Hello everyone, welcome back to the learning of 11 business studies. My name is Pooja. So for today's tutorial, I will be dealing with institutional support to SSI so as to promote the establishment of small scale industries. So prior to this tutorial of chapter small business, I had covered meaning of your small business, further with your MSMED Act, role of small scale industries in socio-economic development of a nation and of course of the untapped area. But for today's tutorial, I will be talking about all those support factor which helps the small scale industries to establish more in numbers. सो इफ़ यू डू रिमेंबर हमने जब भी कंट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा था, रिलेट किया था, सो हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को कवर किया था जो कि हेल्प आउट करता है इकॉनमी को ग्रो करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ योर सोशल फैक्टर एंड ऑफ कोर्स ऑफ योर इकोनॉमिक फैक्टर. लाइक हमने पॉइंट्स कवर किए थे कि जो आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट को जनरेट करता है एंड वो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करता है. इट बेसिकली ऑफर्स द मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम फैक्टर. इट डेफिनेटली प्रमोट द बैलेंस रीजनल development. It offers entrepreneurship opportunities. It offers goods at low cost of production factor. वो एक्सपोर्ट पे भी हेल्प आउट करता है एंड एट द सेम टाइम वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी करता है. सो ओवरऑल वे में अगर बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना किसी भी नेशन के अंदर. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया देन फॉर श्योर इंडिया एज एन इकॉनमी अगर ग्रो करना चाहता है तो ऑफकोर्स द इकॉनमी हैज़ टू टेक केयर ऑफ बोथ द एरियाज, चाहे वो आपका अर्बन एरिया हो, चाहे आपका रूरल एरिया हो, चाहे आपका टैप्ड एरिया हो, चाहे आपका अनटैप्ड एरिया हो. इकॉनमी को ग्रो करने के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल. So the small scale industries have bridged the gap between the rural and the urban India by providing various number of employment opportunities. So SSI has, or they have decreased the migration from the rural to the urban areas. It helped to develop the region across the country. It has promoted export factor. It has eliminated the income, inequalities. So considering the contribution of small scale industry towards country's socio-economic development, the government of India through the 5-year plans and the industrial policy statements has emphasized on formulation and implementation of various policies to establish, promote and develop small industry sector, especially in the backward or the rural or the lesser developed areas. So in the nutshell, जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो बेसिकली गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है सो एज टू प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन मोर नंबर्स. बिकॉज जितना ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड होंगी स्पेशली इन द अनटैप्ड एरिया, इन द रूरल एरियाज़, सो डेफिनेटली वहाँ की डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगी एंड आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे सो एज टू अटेन सोशल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशन और द एडवांसमेंट ऑफ द नेशन. हमने इस ट्यूटोरियल से पहले रिलेट किया था विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एसएसआई. सो डेफिनेटली जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के बारे में सोचता है, ऑफ कोर्स द पर्सन हैज़ टू रिलेट विद द प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफर करती है एंड यही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो टेम्पटेशन के फॉर्म पे एंटरप्रेन्योर्स को ऑफर करी जाती है सो दैट they take the initiatives to start up the small scale business or the industries in the rural or the backward areas. So government means objective is to provide the or to promote the optimum utilization of available resources. The local resources can be effectively used only if the small industries are provided appropriate support from the government. So as to develop the rural India, the government has formed various agencies, departments and corporations under the Ministry of your Small Scale Industries. So let us discuss the various agencies and the support measures or programs followed by them so as to promote and develop the small and rural industries. So बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को ऑफर किया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए. सो उसको हम कवर करेंगे वन आफ्टर वन डेफिनेटली. सो सबसे पहले इनिशिएट करते हैं विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड बोलते हैं. सो नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1982 एज अ डेवलपमेंट बैंक एंड जो फंक्शंस वो परफॉर्म करता था वो थे आपके इट ऑफर्स काउंसलिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज. It organizes training and development programs for rural entrepreneurs. It monitors and formulates rehabilitation schemes.
It functions as a regulatory authority supervising, monitoring, and guiding cooperative banks and regional rural banks, of course. It supports state government in the creation of infrastructure. It facilitates credit flow for promotion and development of agriculture and integrated rural development. Further, it prepares annual rural credit plans for all the districts in the country. It promotes research in the field of rural banking, agriculture and rural development. So in the nutshell अगर हम बात करें, so NABARD was established definitely by the government of India and that too in the year 1982 as a development bank. So development bank वो बैंक होता है जो कि इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है इन द स्टैब्लिशमेंट, एंड जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट करती हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो, मीडियम पे हो, लार्ज स्केल पे हो, सारे जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द प्रोडक्शन. तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी कंट्री का होगा उतना ही हमारी कंट्री की जो जीडीपी होगी वो राइज होगी, उतना ही हमारी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा एंड पर कैपिटा इनकम भी एनहांस होगा. सो कीपिंग एवरीथिंग इन द माइंड, नाबार्ड को प्रमोट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1982. एंड जो मेजर फंक्शन वो परफॉर्म करता था, इट वाज लाइक कि वो क्रेडिट फ्लो को, मतलब कि जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती थी, सो एज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ योर एग्रीकल्चरल फैक्टर एंड द रूरल डेवलपमेंट, वो पैसे ऑफर करता था. इसके साथ साथ वो काउंसलिंग भी करता था, गाइड भी करता था. एंड इफ इन केस कोई भी एजेंसी को, कोई भी आपके इंस्टीट्यूशन को कोई कॉम्प्लिकेशंस आती थी जहाँ पे उनको एडवाइसरी की रिक्वायरमेंट होती थी, एडवाइस की रिक्वायरमेंट होती थी, तो डेफिनेटली बाय मीन ऑफ नाबार्ड वो कंसल्ट कर सकते थे और अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते थे. इसके साथ साथ टाइम आफ्टर टाइम वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी क्रिएट करते रहते थे, प्रोग्राम्स को स्टैब्लिश करते थे, सो दैट जो भी रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं एनी फॉर्म ऑफ द बिजनेस, सो जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स होंगे ऑफ कोर्स वो काफ़ी डिफरेंट वे में या डिफरेंट अप्रोच को देखते हुए होना चाहिए. द रीज़न इज़ अर्बन मार्केट और द रूरल मार्केट में बहुत डिफरेंस होता है. इसलिए जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स की जो ट्रेनिंग सेशंस होती थी, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते थे, जो कि हेल्प आउट कर सकता है उनको एक परफेक्ट मार्केट में फिट इन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, दैट टू वो जो रूरल एरिया में ऑपरेट करने के लिए सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग होती थी या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते थे, वो उसको भी ऑर्गेनाइज करने का काम नाबार्ड करता था. एट द सेम टाइम नाबार्ड प्रिपेयर करता था कि पूरे साल में जो क्रेडिट या जो पैसे ऑफर किए जाएंगे फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट को कितने पैसे मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करते थे. टाइम आफ्टर टाइम वो रिसर्च भी करते थे इन द वेरियस फील्ड ऑफ योर रूरल बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे रूरल डेवलपमेंट को और प्रमोट किया जाए, ऐसे रिसर्चेस में भी वो पार्टिसिपेट करते थे. इसके साथ साथ वो गाइड करते थे, सुपरवाइज करते थे वेरियस कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक्स, जो कि बैंकिंग का एक सिस्टम है एंड जो ऑपरेट कर रहा था इन द रूरल इंडिया. इसके साथ वो सपोर्ट करते थे स्टेट गवर्नमेंट को इन द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज द बैकबोन फॉर एनी ऑफ द इंडस्ट्री. सो इस चीज़ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था नाबार्ड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नाबार्ड इन द क्रक्स और इन द नटशेल कि कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते थे. डू रिमेंबर द नाबार्ड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years टू इनेबल टू स्टेट गवर्नमेंट. सो जो नाबार्ड है उन्होंने लोन्स एडवांसेस को ऑफर करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट टू जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है दैट इज़ नॉट एक्सीडिंग ऑफ योर 20 years. सो दिस इज समथिंग अगेन जो कि क्रूशल फैक्टर है अबाउट नाबार्ड एरिया ऑफ नॉलेज. Now let's cover the Rural Small Business Development Center, that is RSBDC. So the Rural Small Business Development Center was set up by the World Association for Small and Medium Enterprises and is sponsored by your NABARD. So जो आपका स्मॉल स्केल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है उसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द मीन ऑफ योर नाबार्ड. उसको स्पॉन्सरशिप जो दी थी वो नाबार्ड ने दी थी. एंड ये जो एसोसिएशन था इट वॉज बेसिकली वर्किंग फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विच वॉज ऑपरेटिंग इन द रूरल एरिया. It works for the benefit of socially and economically disadvantaged individuals and group, which means कि जो हमारी इकॉनमी के इतना ज़्यादा प्रिविलेज काइंड ऑफ एडवांटेज को एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं, उनके लिए ये जो आपका सेंटर था वो काम करता था. जो इकोनॉमिकली या सोशली वीक या डिसएडवांटेज पोजीशन पे थे उनके लिए बेसिकली ये काम करता था.
At the same time, it provides management and technical support to current and prospective micro and small entrepreneurs in the rural area. सो रूरल एरिया में जो भी एंटरप्रेन्योर्स वर्क कर रहे थे या वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम आफ्टर टाइम ये एडवाइसेस या मैनेजमेंट कंसल्टेशंस को ऑफ़र करते थे, टेक्निकल सपोर्ट को ऑफ़र करते थे कि कौन सी टेक्निक को ख़रीदना चाहिए, कौन से को नहीं खरीदना चाहिए, विच वन इज़ फीजिबल, विच वन इज़ नॉट। उनको ये सारे एडवाइसेस ऑफ़र करते थे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस आस्पेक्ट में। ऑफ कोर्स इट ऑर्गेनाइजेज प्रोग्राम्स ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वर्कशॉप्स ऑन स्किल अपग्रेडेशन, provides mobile clinics and trainers for training programs, hold counseling camps in the villages. So बहुत frequently ये बहुत तरीके के प्रोग्राम्स को रन करते हैं एंड वो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रिलेट करते हैं विद द रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्बन मार्केट अलग होती है, अर्बन कंज्यूमर्स अलग होते हैं, वहाँ के टेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, इनकम सब कुछ डिफ्रेंशिएटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल इंडिया और द रूरल मार्केट। इसलिए कोई भी एंटरप्रेन्योर का अगर रूरल इंडिया में ऑपरेट करना है तो डेफिनेटली द पर्सन हैज़ टू बी विद अ साउंड नॉलेज ऑफ हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू फिट इन द रूरल एरिया। सो ऐसी स्किल्स और ऐसी नॉलेज को बेसिकली आपका जो रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है वो प्रमोट कर रहा था। टाइम आफ्टर टाइम वर्कशॉप्स को भी क्रिएट करता है जो कि स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम करती हैं एंड वो ट्रेनर्स भी प्रोवाइड करवाता है ट्रेनिंग सेशंस के लिए, बिकॉज ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो, आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हो एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स यू नीड एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल। सो एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल के फॉर्म पे जो आपका RSBDC है वो ऐसे ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करता था। एट द सेम टाइम इफ़ यू फील एनी ऑफ द रोड ब्लॉक्स को अगर आप एक्सपीरियंस करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेशन और द काउंसलिंग, सो डेफिनेटली आपको ये भी RSBDC ऑफर करता है। सो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ एंड वुमेन इन सेवरल ट्रेड्स। सो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, स्पेशली जो यूथ अनएम्प्लॉयड हैं इन द रूरल एरिया, इन द रूरल इंडिया, उनको ट्रेनिंग्स देता है बहुत तरीके की ग्राउंड पे, चाहे वो आपका फूड प्रोसेसिंग का काम हो, सॉफ्ट टॉय को बनाने का काम हो, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम हो, या कैंडल मेकिंग हो, या स्टिक मेकिंग हो, या टू व्हीलर्स की रिपेयर करना हो, उसको सर्विस करना हो, या बिल्डिंग मटेरियल्स को क्रिएट करना हो, ये सारे काम में उनको ट्रेनिंग देते हैं सो दैट जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, डेफिनेटली वो अपने कुछ स्किल्स को सीखें और अपने लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। Now let's cover the next institutional support, that is your National Small Industries Corporation, that is NSIC. So जो NSIC है that was established in the year 1955 so as to promote the growth factor of small business units in the country. जो major functions वो perform करते थे वो थे कि to develop small scale units as ancillary units to a large scale industries, which means that large scale industries जो भी components को use करती है, जो भी इनपुट्स को यूज़ करती है, अगर ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया जाएगा देन फॉर श्योर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना कंपोनेंट्स को, अपने इनपुट्स को हमसे सिक्योर कर सकेंगी एंड हमें एक रेडी मार्केट मिलेगी अपने प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करा था आपके NSIC ने। एट द सेम टाइम टू प्रोवाइड प्लांट एंड इक्विपमेंट टू SSI ऑन द हायर परचेज बेसिस। एज यू नो कि टेक्निक जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, सो एज टू हैव मोर ऑफ द प्रोडक्शन एंड एज जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसके पास फाइनेंस का इशू होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो लेटेस्ट टेक्निक्स को अवेल नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो फॉर दिस रीज़न जो NSIC है उसने ये सोचा कि जो भी इक्विपमेंट्स की या जो भी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, उनको अवेल करवाया जाए, दैट टू ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। टू हेल्प एंटरप्राइज टू पार्टिसिपेट इन द स्टोर परचेज प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ SSI। इसके साथ साथ जो NSIC है उन्होंने हेल्प किया एंटरप्राइजेस को, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, सो दैट वो पार्टिसिपेट कर पाएँ कि किस तरीके से उनको अपने स्टोर को मैनेज करना चाहिए, स्टोर मतलब अपने इन्वेंट्रीज़ को मैनेज करना चाहिए, सो दैट उनका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर बिल्कुल भी ना हो एंड उनका जो प्रोडक्शन है वो फैसिलिटेट करे इम्प्रूव्ड काइंड ऑफ स्टॉक को, इम्प्रूव काइंड ऑफ मार्केट को। इसके साथ साथ उन्होंने असिस्ट किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इन मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स। एज वी नो दैट कि मार्केटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है, इसमें बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपर्टाइज़ की रिक्वायरमेंट होती है एंड यू नीड टू क्रिएट अ रेडी मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट, तभी जाके कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती है। सो जिसकी वजह से एज यू नो कि फाइनेंस इज़ डेफिनेटली द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस करती है। तो इसकी वजह से NSIC ने ये सोचा था कि उनके
जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करती है उसको मार्केट करने में डेफिनेटली वो उनकी हेल्प आउट करेगी। इसके साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खरीदती हैं, ऑफ कोर्स दैट शुड बी क्वालिटेटिव इन नेचर, तभी आपका जो आउटपुट होगा वो क्वालिटेटिव होगा। बट अगेन उनके पास पैसों की कमी होती है तो दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द ग्राउंड की जो एवरेज काइंड ऑफ या सब स्टैंडर्ड काइंड ऑफ रिसोर्सेज होते हैं उसको वो प्रोक्योर कर देते हैं या कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो NSIC है उसने ये सोचा था कि जो प्रोक्योरमेंट होगा ऑफ द रॉ मटेरियल दैट शुड बी वेरी मच क्वालिटेटिव इन नेचर, एंड प्रोक्योरमेंट को करवाने के लिए, फैसिलिटेट करवाने के लिए NSIC ने ये सोचा कि वो हेल्प आउट करेगा सो एज टू ग्रैब द इंडिजिनस एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जिससे की वजह से आपको ओवरऑल क्वालिटी जो होगी प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव होगी। इसके साथ साथ टू इम्पोर्ट एंड प्रोवाइड कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स रिक्वायर्ड बाय एक्चुअल स्मॉल स्केल यूजर्स इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़। अगर ऐसा कोई रॉ मटेरियल है या ऐसा कोई आपका कंपोनेंट है या पार्ट है जो कि आपकी कंट्री के अंदर नहीं मिलता है बट किसी और कंट्री के अंदर मिलता है, तो उसको इम्पोर्ट करवाने का काम भी फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो NSIC ने अपने अंडर लिया। इसके साथ साथ टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड डेवलप एक्सपोर्ट वर्डिनेस। सो जो भी सामान यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है उसके लिए रेडी मार्केट क्रिएट ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे करना बट इंटरनेशनल लेवल पे भी करने का काम NSIC ने लिया। एंड इसीलिए उन्होंने फोकस किया था ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी हो चाहे वो आपकी ओवरऑल आउटपुट की क्वालिटी हो। At the same time, to sensitize small industries about the credit rating through the performance and credit rating schemes. So इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म पे ऑपरेट करेंगी इन द रूरल इंडिया, उसका टाइम आफ्टर टाइम वो रेटिंग्स करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे सो आज टू जज इट आउट कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से काम कर रही हैं, किसको फॉर द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये ओवरऑल जो क्रक्स है, जो ओवरऑल जो काम है वो NSIC ने अपने अंडर लिया। Next we have Small Industries Development Bank of India, that is your SIDBI. So SIDBI was established in the form of Industrial Development Bank of India by the Act of Parliament in the year 1990. So जो main function थे SIDBI के, that was to work as a refinancing agency to banks and financial institution providing credit to small industries, which means that जब भी small scale एंटरप्रेन्योर्स को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है देन ऑफ कोर्स इट टर्न आउट टू द बैंक्स जो कि प्रेजेंटेड होते हैं। सो बैंक को रीफाइनेंस करने का जो काम था वो दिया गया था SIDBI को, कि जब भी बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि स्पेसिफिकली ऑफर करते हैं लोन्स और द क्रेडिट्स टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज़, अगर उनको पैसों की कमी होती है तो उसको रीफाइनेंस करने का काम जो मिला था इन द फॉर्म ऑफ द एजेंसी दैट वाज ऑफर्ड बाय योर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। Next we have it provides direct and indirect financial assistance to small industries under different schemes. उन्होंने टाइम आफ्टर टाइम बहुत सारे स्कीम्स को प्रिपेयर किया, लॉन्च किया, एग्जीक्यूट किया, जो कि डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में हेल्प आउट कर रहे थे इन द मैटर ऑफ योर फाइनेंस फैक्टर जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को चाहिए था सो एज टू ग्रूम एंड डेवलप, बिकॉज हमने देखा है कि फाइनेंस इज़ द मेजर रूट कॉज जिसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस लेवल पे ऑपरेट नहीं कर पाती थी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। सो जो भी SIDBI का रोल था या ऑब्जेक्टिव था, अगर वो किसी और एजेंसी का ऑब्जेक्टिव है, किसी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का अगर ऑब्जेक्टिव है तो फॉर श्योर उसके साथ वो कोऑपरेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, उसके साथ डिस्कशन करेगी, मीटिंग्स करेगी एंड पॉलिसीज़ या प्लान्स को फ्रेम आउट करेगी कि किस तरीके से बेटर काइंड ऑफ सपोर्ट ऑफर किया जा सकता है टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन उन्होंने परफॉर्म किया है दैट इज़ टू सपोर्ट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लेंडिंग। सो इस तरीके से उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी बढ़ावा दिया, उनको भी प्रमोट किया कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपार्ट फ्रॉम द बैंक भी ऑपरेट करने चाहिए सो एज टू प्रोवाइड द लेंडिंग कैपेसिटी टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स और टू द पीपल जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो अभी तक इन द फॉर्म ऑफ योर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट हमने रिलेट किया विद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दैट इज़ NABARD एज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ऑफर टू योर SSI। सेकेंड हमने कवर किया द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर दैट इज़ योर RSBDC एज अ सेकेंड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। थर्ड नंबर पे हमने कवर किया नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन दैट इज़ योर NSIC
एंड फोर्थ कंपोनेंट या फोर्थ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो हमने कवर किया आज के ट्यूटोरियल में, दैट वाज योर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी. देयर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एज वेल जो कि हेल्प आउट करती है सो एज टू प्रमोट एंड डेवलप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. बट आज के ट्यूटोरियल के लिए हमने 4 कवर किए हैं, दैट इज़ नाबार्ड, RSBDC, NSIC एंड सिडबी. बाकी के जो आपके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ माइन. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच.